الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی دیکھ لے تو محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، اگر کوئی ان کی سیرت کو پڑھ لے تو محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، اگر کوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائے تو وہ محبت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یاد رکھنا زمانہ جب بھی مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ لے گا، چاہے تصورات میں دیکھے، چاہے سیرت کے پہلو میں دیکھے، چاہے جس اعتبار سے دیکھے، ہر انسان محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اسی لیے تو دنیا میں ہاہاکار مچا ہے، سب سے محبت ہونے دو لیکن محمد سے محبت مت ہونے دو، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے یہی تو ایک شخصیت ایسی ہے جو سب کا دل موہ لیتی ہے۔ اور یاد رکھنا اسلام کی اشاعت کسی اور چیز پر نہیں ہوگی، صرف مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کی بنیاد پر ہوگی۔ اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف سے کہا تھا، او یوسف میں تیرے خدا کو نہ جانتی ہوں نہ مانتی ہوں، بس بات اتنی ہے جس دن سے تجھ سے محبت ہو گئی ہے اس دن سے تیرے خدا سے بھی محبت ہو گئی ہے۔ تو ضابطہ یہی تو ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے جو یوسف کو دیکھے بن دیکھے اس کے خدا کو پیار کرنے پر مجبور ہو جائے، اور جو محمد الرسول اللہ کو مان لے گا پھر وہ خدا سے کتنا پیار کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اصل مقصد تو خدا کی محبت ہے لیکن خدا نے ایسا بنا کر کے بھیجا ہے۔ ارے جب حسن یوسف کو دیکھ کر ایک عورت اپنا بت چھوڑ کر کے خدا کو ماننے پہ مجبور ہو گئی، اگر وہ مصطفیٰ کو لوگ دیکھ لیں تو پھر کس طریقے سے محبت کریں گے۔ بات آئی تو ایک بات عرض کروں، ہمارے نبی کو تو بے مثالی بنایا گیا۔ ایک دن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا یوسف زیادہ خوبصورت ہے علیہ السلام؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل منہ لگے ہوتے ہیں اور جو چاہتے ہیں پوچھ لیتے ہیں، جیسے چاہتے باتیں کر لیتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اتنے قریب تھی اور بیوی بھی تھی، اللہ اکبر، اور اسی لیے نکاح میں آئی بھی تھی تاکہ وہ حضور سے علم لے، بے تکلف لے اور امت کو عطا کرے۔ اسی لیے 1/3 دین اگر کسی سے ملا ہے تو وہ ام المومنین سیدہ عائشہ سے ملا ہے۔ ام المومنین نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت تھے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، عائشہ میرے حسن کا صرف ایک حصہ، میرے حسن کا صرف ایک حصہ اللہ نے میرے بھائی حضرت یوسف کو عطا فرمایا ہے۔ اندازہ کریں جس کو ایک حصہ ملا ہو اس کے حسن کا عالم یہ ہے، اور جو سراپا جس کو مکمل حسن ملا ہو اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ اس کا اگر آپ تقابل کرنا چاہیں تو اندازہ کر سکتے ہیں۔ حسن یوسف یہ ہے، حسن یوسف یہ ہے کہ ان کا سراپا دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہوتی ہے، اور حسن مصطفیٰ یہ ہے سراپا نہیں صرف انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن فرق دیکھیں، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حسن یوسف کا سراپا دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے ہو گئی، اور صرف حسن مصطفیٰ پورا نہیں، انگلی دیکھ کر چاند ٹکڑے ہو گیا۔ مگر فرق یہ ہے، مفتی صاحب اور ان جیسے علماء محققین موجود ہے، ان عورتوں کی انگلیاں ٹکڑے تو ہوئی مگر ٹکڑے ہی رہی، جڑنے کا کوئی ثبوت ہمیں نہ ملا، مگر یہ حسن مصطفیٰ ہے، انگلی دکھا کر توڑ بھی دیا ہے، انگلی دکھا کر جوڑ بھی دیا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جموں اور گرد نواح سے آنے والے مسلمانوں تمہیں پتا ہونا چاہیے تم کلمہ کس کا پڑھتے ہو۔ ارے ہے کسی کے پاس ایسا قائد تو لائے جس کی انگلی کو دیکھ کر چاند ٹوٹتا بھی ہے اور چاند جڑتا بھی ہے، وہ صرف اور صرف ہمارا نبی اور ہمارا نبی ہے۔ اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔
रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। अरे हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अंदाजा तो फरमाए ये अपने नबी की शान है, हुस्न में ऐसे बेमिसाल है, अल्लाह अकबर। और इल्म उनका बेमिसाल, हुस्न उनका बेमिसाल, तकवा उनका बेमिसाल, किरदार उनका बेमिसाल, शान उनकी बेमिसाल। याद रखना, मखलूक में कोई कितना भी बकबक करे उसकी औकात वो बताता है, लेकिन उनकी इज्जत खालिक के नजदीक कितनी है कि खालिक के नजदीक उनकी इज्जत को देखकर तुम और मैं नहीं, अर्श की अक्ल दंग हो जाती है, अर्श की अक्ल दंग हो जाती है और आसमान को चक्कर आने लगते हैं। मेरे इमाम लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो जो फरमाए सुभान क्या शान है अल्लाह के नजदीक, उनकी शान क्या है? सारे नबियों को जो शानें अता की वो सारी शानें एक नबी में जमा कर दी। अगर अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की कोई शान हमसे पूछे तो इस एतबार से हम कहेंगे कि कम से कम अगर हमारे नबी में कम से कम खूबियां, कम से कम तो कमो बेश 1,24,000 खूबियां कम से कम है, कम से कम। और हर नबी की एक एक हो तो, और हर नबी की एक एक खूबी नहीं दी, हर नबी की हर खूबी उनके अंदर रखी, और वो भी खूबी जो रखी वो मिन नौन उठा करके नहीं रखी, बल्कि उसको और तरक्की दे करके रखी, कमाल पे पहुंचा के प्रमोट करके रखा। मिसाल के तौर पर हजरत आदम की खूबी ये है, अगर आप लोग उर्दू समझते हैं तो आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आ रही है बात। हाँ, और अगर बात समझ में आए ना तो हुजूर की अजमत टीजे और चहलुम के महफिल की तरह नहीं सुनते, हुजूर की अजमत तो जिंदा दिलों की तरह सुनते हैं, हैदर कर्रार के गुलामों की तरह सुनते हैं, सिद्दीक अकबर के गुलामों की तरह सुनते हैं कि कोई करीब से गुजरे तो पता चले कि किसी का जिक्र हो रहा है और उसके गुलाम उसका जिक्र दिल के कानों से सुन रहे हैं। हाँ, तो महफिल जिंदा रहनी चाहिए। तवज्जो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शान जो दी, तवज्जो क्या शान दी कि फरिश्तों ने उनको सजदा किया, ये आदम अलैहिस्सलाम की शान है, ठीक है। अब यही शान हुजूर को दी, तवज्जो, यही शान हुजूर को, लेकिन मिन्नवन नहीं दी, मिन्नवन नहीं दी, बल्कि उसको कमाल दर्जे पर पहुंचा कर दिया। कैसे? सारे फरिश्तों से कहा सजदा करो, ये आदम अलैहिस्सलाम की शान है। लेकिन हमें पता है, ज़ाब्ता है, बड़े लिखे लोग हैं कि पहले फरिश्ते सजदे में नहीं थे, फिर सजदे में गए, फिर सर उठा लिया। यानी सजदे का पीरियड जो है वो एक लिमिटेड पीरियड है, एक महदूद वक्त है। पहले नहीं थे, फिर थे, फिर सर उठा लिया। यानी अगर हमसे कोई पूछे सजदा कितना हुआ तो हम बता सकते हैं, लेकिन ये शान आदम है कि वहां फरिश्तों को झुका दिया सजदा करवाने के लिए। लेकिन जब यही शान हुजूर में रखी तो कितनी प्रमोट करके और कमाल दर्जा करके रखी कि इनको सजदा करवाया सब फरिश्तों से और उनको उन पर दुरूद पढ़वाया सब फरिश्तों से। यहां सजदा है, वहां दुरूद है, लेकिन फर्क क्या है? अल्लाह अकबर, यहां सजदा करने में करवाया, खुद शामिल नहीं हुआ, सजदा करवाया, खुद शामिल नहीं हुआ, क्योंकि उसकी शान नहीं कि वो किसी को सजदा करे, मगर वहां दुरूद पढ़वाया तो दुरूद पढ़ने में खुद भी फरमा रहा है कि तुम अपनी हैसियत के मुताबिक पढ़ो, मैं अपनी शान के मुताबिक भेजूंगा। कहा वो शान, कहा ये शान। उसके बाद फिर वहां महदूद पीरियड के लिए सजदा है, और यहाँ इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, मुजारे के सेगे के साथ, इस्तिमरार के इशारे के साथ अल्लाह अकबर, यानी दुरूद कब से भेजा जा रहा है और कब तक भेजा जाए
युसल्लून अलन नबी, अल्लाह और फरिश्ते किस पे दुरूद भेज रहे हैं? मोहम्मद पर नहीं, किस पर? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह। किस पर? नबी पर। अगर अल्लाह आयत में ये फरमा देता कि मोहम्मद पर दुरूद, तो बहुत ज्यादा लोग दिमाग लड़ाते ना, अकल वाले कहते नामे मोहम्मद कब रखा गया? का 20 अप्रैल को 571 ईस्वी में जब मक्के में पैदा हुए तो उनके दादा ने और उनकी अम्मी ने उनका नाम मोहम्मद रखा। क्या नुक्ता? तो दुरूद कब से पढ़ा जा रहा है? 20 अप्रैल 571 ईस्वी से दुरूद पढ़ा जा रहा है, अल्लाह और फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं। तो यहाँ तो तायुन हो गया, पता चल गया कब से। ये भी नहीं कहा रसूल पे दुरूद, इसलिए कि जब फारान की चोटी से नबूवत का ऐलान किया तो तब से रिसालत का काम शुरू हुआ, तो लोग कहते 40 साल के हुए तब से दुरूद पढ़ा जा रहा है। क्या कहा? युसल्लून अलन नबी, यही तो कुरान का मौजज़ा है जहां सबकी अक्लें दंग रह जाती है। मोहम्मद नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, बल्कि वो मोहम्मद भी है रसूल भी है, लेकिन जब दुरूद की बात आई तो कहा युसल्लून अलन नबी, नबी पर दुरूद। तो अब हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हैं? तो फरमाते हैं आदम जब मिट्टी और पानी के दरमियान की मंजिलें तय कर रहे थे उस वक्त भी मैं नबी था, नबी बना नहीं था बल्कि नबी था। अभी आदम मिट्टी और पानी के दरमियान का सफर कर रहे थे, तब भी अल्लाह मुझ पे दुरूद भेज रहा था और फरिश्ते मुझ पे दुरूद। नारे तकबीर। ये शान अपने नबी की और सिर्फ अपने नबी की शान है। लोग कहते सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, मैंने कहा बहुत बड़ी शान है, सुलेमान अलैहिस्सलाम हमारे आका है, लेकिन परिंदा कुछ ना कुछ तो बोलता है। तोता टाएं टाएं कुछ तो करता है, कौवा काएं काएं तो करता है, चिड़िया चूं चूं तो करती है, जबान है उनकी आवाज तो आती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियां जानते थे, लेकिन ये मेरा नबी और सिर्फ मेरा नबी है जिसको जबान नहीं है, उस पत्थर की बोली भी हुजूर जानते हैं और इरशाद फरमाते हैं मैं उस पत्थर को अभी तक पहचानता हूं जो ऐलान नबूवत से पहले मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ा करता था। अंदाजा फरमाए पत्थर को किसी ने सुना, बताएं सुना, साइंस इतनी तरक्की कर रही, सुना, वो अपना नबी है जो पत्थर की बोली सुनता है। लेकिन एक बात यहां और अर्ज कर दूं, अरे जब हजर दुरूद पढ़ के नबी की बारगाह में अपनी पहचान बना सकता है तो क्या बशर दुरूद पढ़ के नबी की बारगाह में अपनी पहचान नहीं बना सकता? हुजूर कह रहे मैं उस पत्थर को अभी भी पहचानता हूं जो मुझ पे दुरूद पढ़ता था। यानी इसका मतलब जो दुरूद पढ़े हुजूर अलैहिस्सलाम उसको पहचानते हैं। बहुत तवील गुफ्तगू करने की बजाय मैं आपके सामने बात समेटने लगा हूं। हमारे नबी हैं ऐसे, सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान ऐसी, लेकिन उससे बढ़कर उनकी शान, यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान ऐसी, उससे बढ़कर उनकी शान। दो बातें और सुन ले और बात को फिर हम दूसरे मोड़ की तरफ ले जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शान वाले पैगंबर हैं, उनके पास प्यासे आते हैं और आकर के कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम हमें प्यास लगी है। तो हजरत मूसा डंडा लेते हैं, असा, और पत्थर पे मारते हैं तो पानी के चश्मे जारी हो जाते हैं। प्यासे आए, डंडा भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, पानी का चश्मा जारी, वो बड़ी बात है। लेकिन जब मेरे नबी के पास प्यासे आते हैं तो ना डंडे की जरूरत है ना पत्थर की जरूरत है, जहां बैठे हैं वहीं पर प्याले में हाथ रख दिया और उंगलियों से पानी के चश्मे जारी हो गए। मेरे इमाम कहने लगे उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, उंगलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाहवा, नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाहवा। याद रखना पत्थर से पानी तो निकलता ही है, लेकिन उंगलियों से पानी निकलना किसी ने कभी नहीं सुना होगा। ये मुस्तफा जाने रहमत की उंगलियां हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते, बड़ा मौजज़ा है, वो मसीहा है। लेकिन हमारे नबी सिर्फ मसीहा नहीं बल्कि जाने मसीहा है। बात यह है कि मुर्दे को जिंदा करना किसे कहते हैं? रूह थी निकल गई फिर ला के डाल दी, इसको कहते हैं मुर्दा जिंदा करना। ये मुर्दा जिंदा करना, मगर मेरे नबी ने पत्थर को भी कलमा पढ़वा करके बताया ईसा रूह लाते हैं और जिसमें रूह नहीं है उससे भी मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलवा लिया करते हैं। ये अपने नबी की शान है। बोलो अल्लाह ने ऐसा नबी अता किया है, ये उनकी शानें हैं। और अगर उनका किरदार देखें, उनका अखलाक देखें, अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं अरे मौलाना उनकी आप बात करते हैं, वो तो बकरियों का दूध दोते थे। दरअसल दुनिया में जो गुस्ताखियां हो रही है ना, कुछ 1857 के बाद के मौलवियों ने
یہ بنیادیں فراہم کی ہے لوگوں کے لیے کہ تم گستاخی کرو. اگر مولوی گستاخی نہ کرتا تو منکر کلمہ کبھی اوقات نہیں تھی کہ وہ رسول اللہ کو گالی دے سکتا تھا. یہ بات ہے. میں کوئی کسی کو فتنہ پھیلانے نہیں آیا، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا، اچھی طرح یاد رکھنا، قبر میں کوئی مولوی صاحب نہیں آنے والے. قبر میں اگر آنا ہے تو آمینہ کے لال نے آنا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اس لیے آپ کو